गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये लेक्चर 1 है। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेट्स कोड फुल में। सबसे पहले हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। स्टार्टिंग में बहुत कम एलिमेंट्स थे, तो उनको याद रखना, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मेमोराइज करना बहुत ईजी था। लेकिन जैसे जैसे मोर एंड मोर एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर देम। तो लॉजिक बिहाइंड था कि वाई क्लासिफिकेशन इज 118 एलिमेंट्स आर नोन, 98 naturally occurring and 20 man-made. More and more properties are discovered about the elements. जब नई नई प्रॉपर्टीज उनकी ढूंढी गई, स्टार्ट में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बट लेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो इन सब के बारे में याद रखना डिफिकल्ट हो गया। तो दैट इज व्हाई वी क्लासिफाई द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू मे बी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी एसेट्रा। फिर जब प्रॉपर्टी बढ़ गई तो उनको याद कैसे रखें? सो दैट इज व्हाई वी हैव गिवन दिस टेबुलर फॉर्म इन विच प्रॉपर्टीज एक प्रॉपर ग्रेडेशन में बढ़ती है, मतलब या तो इंक्रीज होती है एक प्रॉपर पैटर्न में या फिर डिक्रीज होती है। So when initially the metal was initially the elements were classified as metal and non-metal, but later on when more and more elements were discovered and more and more properties were studied, it was not sufficient to classify the metals elements as metal and non-metal. So many scientists tried to classify them according to some property. So the first scientist was Dobbe-Riner. Dobbe-Riner, what he did, in 1817, Dobbe-Riner was a German scientist. So he tried to arrange elements in similar properties into groups. He identified some groups of 3 elements each. As it was the group of 3 elements, he named them as triads. So in a triads, when you arrange the elements according to their increasing mass, so the average of the first two, not the first two, the average of the top and the bottom walls is equals to the mass of the middle one. So if we see the example over here, like lithium, sodium, potassium, these are the Dobbe-Riner triads. So if you find out the mass of these elements, they are like lithium ka it is 7, sodium ka it is 23, and potassium ka is 39. So what he says, increasing order. So yes, lithium, sodium and potassium is in increasing order of their masses. Then says the atomic mass of the middle element was roughly the average of atomic masses of the other 2 elements. So see, there is 3 elements, so middle one is sodium and its atomic mass is 23. Now the other 2 elements is lithium and potassium. Take the average mass of these two. So lithium ka is 7, potassium 39. Average means sum. What is the average? Average is nothing but sum of all observation divided by number of observation. So sum of all means 7 and 39, and how many observation are there? 2, lithium and potassium. So when you add these, you will get 46 divided by 2, and which is 23. And this is nothing but the mass of the middle element, that is sodium. Correct? So he has made the group of 3 elements, called them triads. And when we increase these 3 elements in the increasing order of their masses, the average of the first and the last one is equals to the mass of the middle element. And here it is, if you take the mass of lithium and potassium and their average, it will give the mass of sodium.
So it was a good try because it is the first one to work something in classification of elements. But this method has some limitation, and that limitation was Dubé mirror could identify only three triads from the element known at that time. So here it is not mentioned there were 20 elements at the time of Dubiner, 20 elements. And he could identify only three triads. Three triads means three, and in one triad there is three elements. So total 9 elements. So out of 20 elements, he could arrange only 9 elements and the other was untouched. They were not grouped or classified. So that is why these Dubinier triads was not that much useful. So the second scientist we has tried to classify the elements was Newland. In 1866, John Newland, his full name was John Newland, and he was an English scientist. What he did, he arranged then known elements. At that time, 56 elements were known, like here, 56 elements total pata the. So he arranged all the elements in increasing order of atomic masses. He took all the elements and he arranged them in the increasing order of atomic masses. So the first element which had the least mass was hydrogen, and the 56th element was thorium. So what he did, he kept the hydrogen first, the next element, then next element, and last was thorium. What he noticed that every 8th element had properties similar to the first one. So he did hydrogen, lithium, barium, boron, carbon, nitrogen, oxygen. See, there is a 7. So 8th element was fluorine. So fluorine has the same property as the hydrogen. Then again he saw the 8 element. Then he arranged fluorine, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur. Then again the 8th element, which was chlorine, it has the property according to the hydrogen, fluorine in that group. So as he has compared this law of octaves found in music, like in music we have sa re ga ma, देखिए यहाँ top में लिखा हुआ है sa re ga ma pa dha ni, or if you talk in English it's the do re mi fa so la ti. So as in the music there is octave found, so that is why this law was given the law of octaves. And as Newland has discovered this, so Newland has discovered it, the name given was Newland's law of octaves. So there was pattern, he could arrange 56 elements, but there was limitation. What was the limitation? So law of octave was applicable only up to the calcium. So here you can see up to calcium, this law was working fine. But after that, if you go and see, the 8th element did not have the property as the first one. So this was valid up to the calcium, and after that 8th element did not possess the same property as the first. That was first limitation. The second limitation was Newland has assumed that only 56 elements are there in the nature, and in future there will be no elements which we can discover. So that is why when new element got discovered, like inert gases and other elements, Newland's table did not allow to keep them because there was no provision where should we keep the new element, because he has already assumed there is no other element in the nature. And the third one was, in order to fit the element in his table, what he did? He kept element which has not similar properties. Like here, if you see cobalt and nickel, they do not have the similar properties to chlorine and bromine, because chlorine and bromine are non-metal. They have some different properties. Cobalt and nickel are totally different than these group elements. So that was one. If you observe further, iron, Fe, has the same property as cobalt and nickel,
but they are kept very far in the periodic table. So that was the drawback of Mendeleev periodic table. First, unlike elements kept together like fluorine, cobalt and nickel, they are unlike elements, but he has kept together. Second, the similar properties like iron, cobalt and nickel, they have similar properties. So like elements were kept far in the periodic table. And it was not valid to all the elements, only up to calcium. After that, the eighth element did not repeat its property according to the first. These were the limitations of Newland. Okay? So Newland law is what? If you keep the elements in increasing order of their atomic masses, every eighth element will show the property of the first. And he has compared it with octaves found in music. That is why it is known as Newland's law of octaves. Itna clear ho gaya, so that we can move the third one. So till now we have studied Newland's first one is Daubigny triads, and the second one is Newland's law of octaves. Next है Mendeleev periodic table. When Daubigny and Newlands दोनों की टेबल रिजेक्ट हो गई, उनका क्लासिफिकेशन वॉज नॉट एक्सेप्टेड, साइंटिस्ट ना माने नहीं, दे वर इन द रिसर्च ऑफ सम अनदर पैटर्न. होते क्या है, साइंटिस्ट बहुत जिद्दी होते हैं. एक्चुअली जो जिद होती है ना, इट इज गुड अगर वो सही तरीके से यूज किया जाए. करेक्ट, जिद पकड़ लीजिए कि अरे इस बार तो मुझे इंडिया टॉप करना है, होगा और पक्के से होगा. चलिए टॉपिक में आते हैं. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. तो मेंडलीव ने क्या किया, वो साइंटिस्ट थे, उनका पूरा नाम था दिमित्री इवानोविच मेंडलीव और वो एक रशियन केमिस्ट थे. उन्होंने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट उस समय पे नोन थे, उनके टाइम में 63 एलिमेंट्स नोन थे. सो 63 एलिमेंट में से उन्होंने सारे एलिमेंट को अरेंज किया. कैसे अरेंज किया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी. फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बेसिस पे उन्होंने अरेंज किया. और फंडामेंटल प्रॉपर्टी उन्होंने कौन कौन सी ली? एटॉमिक मास, ऑल्सो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव ने क्या लिया कि हाउ द एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. लॉजिक बिहाइंड था कि उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही क्यों लिया? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट हैं जो लगभग सारे एलिमेंट से रिएक्ट कर देते हैं. दे आर वेरी रिएक्टिव. सो दैट इज व्हाई मेंडलीव चोज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाकी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए. तो उन्होंने क्या किया, जब टेबल बनाई तो सारे एलिमेंट्स के हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला टॉप में लिख दिया. अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगी कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल कैसे थी और उन्हें हाइड्राइड और ऑक्साइड कैसे लिखे थे. तो उन्होंने बोला कि जो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है वो हाइड्राइड और ऑक्साइड के साथ रिएक्ट जब करते हैं तो उसी को बेसिस लेना चाहिए फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. तो उन्होंने क्या किया, एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिया और फिर उनका एक कॉमन फॉर्मूला लिखा. जो भी मेटल के ऑक्साइड्स या हाइड्राइड उस फॉर्मूला से मैच कर रहे थे, उस एलिमेंट को पर्टिकुलर ग्रुप में रख दिया. तो इस प्रोसेस के लिए उन्होंने किया क्या था, जो भी 63 एलिमेंट्स नोन थे उन सब की एलिमेंट की इंडिविजुअल उन्होंने प्रॉपर्टी स्टडी की. सारे एलिमेंट का एक एक पेपर के पीस ऑफ पेपर में उन्होंने नाम लिखा और उसकी प्रॉपर्टीज लिखी. उन और जिनकी एक जैसे प्रॉपर्टी थी उनको एक साथ पिन अप कर दिया. फिर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज कर दिया. तो उन्होंने देखा कि जो उनकी प्रॉपर्टीज है फिजिकल या केमिकल, वो आफ्टर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है और वो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास थी, एटॉमिक मास. इसीलिए उन्होंने एक लॉ बना दिया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. मतलब क्या बोल रहा है कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक है, मतलब एक थोड़े समय के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होती है.
कैसे रिपीट होती है? वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, दूसरे एलिमेंट की, तीसरे एलिमेंट की, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में है। थोड़े समय के बाद वो प्रॉपर्टी, मतलब एक सम एलिमेंट की प्रॉपर्टी एग्जैक्टली फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के जैसे होगी, इसलिए इसको उन्होंने पीरियोडिक फंक्शन बोला। सो ये तो हो गया मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। So here you can see Mendeleev periodic table. This is Mendeleev periodic table. In this, if you see, almost all the elements, 63 elements he has arranged at that time with similar properties in one group. न्यूलैंड में क्या प्रॉब्लम थी? डिसिमिलर एलिमेंट एक साथ थे और सिमिलर एलिमेंट फार अवे थे, और सारे एलिमेंट लॉ फॉलो भी नहीं कर रहे थे। डुबिनियर में भी यही प्रॉब्लम थी कि he could make only few triads, not all. मेंडलीव was the first जिन्होंने पूरे के पूरे एलिमेंट को अरेंज कर दिया। तो जब ये अरेंज कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ जगह पे आपको दिखेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप निकिल और कोबाल्ट को, यहाँ देखिए निकिल का मास 58.71 है, कोबाल्ट का 58.93। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज करना है तो निकिल पहले आना चाहिए था एंड आफ्टर दैट कोबाल्ट, लेकिन ये सीक्वेंस चेंज था, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ये फिट नहीं हो रहा था। लेकिन मेंडलीव ने ये किया क्यों? द सीक्वेंस वाज इन्वर्टेड सो दैट द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर। तो लॉ जो उनका था वो वायोलेट हो रहा था, लेकिन उन्होंने क्यों किया था? ताकि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक साथ आ जाए। नेक्स्ट जो था, मेंडलीव ने कुछ गैप छोड़े थे। अगर आप देखिए तो ये वाला बॉक्स खाली है ना, यहाँ बॉक्स खाली है, ये पूरी जैसे अगर ये ग्रुप ए और बी में डिवाइड है तो ग्रुप ए में है, यहाँ ए में है, लेकिन ये बी वाला स्पेस, कैन यू सी, ये बी के नीचे वाला स्पेस खाली है। तो इस वजह से ये जो उनका खाली था, इसको उन्होंने ड्रॉबैक नहीं बोला। मेंडलीव बोल्डली प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट दैट हैड बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। जो डिस्कवर भी नहीं हुए थे उन एलिमेंट के बारे में मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया, और उन्होंने इतना प्रेसाइज प्रिडिक्ट किया था कि डिस्कवर होने के पहले ही उन एलिमेंट के ऑक्साइड और हाइड्राइड उन्होंने बता दिए थे, जैसे कि इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। ये उन्होंने बोला कि 3 एलिमेंट डिस्कवर होंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। इका बोरॉन स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम गैलियम और इका सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम, ऐसे 3 एलिमेंट डिस्कवर हुए जो वही प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे थे जो मेंडलीव ने इन एलिमेंट के ग्रुप में किए थे। इका बोरॉन, इका जो है एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है एक, तो इका बोरॉन मतलब स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम मतलब गैलियम और इका सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम। इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी तब मेंडलीव ने बताई जब ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते थे, मतलब एग्जिस्ट तो करते थे, लोग इनके बारे में, साइंटिस्ट इनके बारे में जानते नहीं थे। नेक्स्ट था नोबल गैसेस। एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का कि जो नोबल गैसेस हैं वो बाद में डिस्कवर्ड हुए। मतलब मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बना दी और उन्होंने ये लॉ फॉर्मुलेट कर दिया, उसके बाद काफी बाद नोबल गैसेस आई थी। तो नोबल गैसेस को विदाउट डिस्टर्बिंग द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वो ओरिजिनल रखते हुए लास्ट ग्रुप यहाँ पे नोबल गैसेस को रख दिया गया। तो विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल नोबल गैसेस कुड बी अकोमोडेट। ठीक है, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ही कुड अरेंज ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स। उन्होंने हायर मासेस को लो मासेस से बिफोर रखा था। ये उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखने के लिए किया था। देयर वाज सम गैप, उन गैप में कौन से एलिमेंट आएंगे मेंडलीव ने उनके डिस्कवरी के पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। नेक्स्ट, नोबल गैसेस जो हैं वो जब डिस्कवर हुई तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में अकोमोडेट कर दी गई लास्ट कॉलम में। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को लोगों ने इसलिए एक्सेप्ट किया
क्योंकि इन्होंने जो एलिमेंट प्रिडिक्ट किए थे, इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम, और उनकी प्रॉपर्टी बताई थी, एलिमेंट डिस्कवर हुए तो 100% प्रॉपर्टी मैच हो रही थी, तो इसलिए भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की वैलिडिटी बढ़ गई। Now coming to the limitations of Mendeleev periodic table. So what has happened? The limitation was, the first limitation, place of hydrogen. Problem was कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी एल्कली मेटल जैसे थी, क्योंकि वो ऑक्सीजन से जो रिएक्ट करता था वो एल्कली मेटल के जैसा पैटर्न था। अगर हम उसको देखें तो फॉर एग्जांपल एल्कली मेटल मतलब सोडियम, तो सोडियम ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करेगा? Na2। तो हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता था H2O। तो इन दोनों का जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम है। सेम वे जब सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो NaCl, हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो HCl। तो दोनों के हाइड्राइड और ऑक्साइड, हाइड्रोजन और एल्कली मेटल के सेम थे, और उसका रिजेम्बलेंस जो था हैलोजन ग्रुप की तरह था, क्योंकि हैलोजन ग्रुप क्या करते हैं? डाई एटॉमिक बनाते हैं। डाई एटॉमिक मतलब क्लोरीन Cl2 बनाता है, फ्लोरीन F2 बनाता है, तो हाइड्रोजन भी F2 बनाता है। नेक्स्ट, जो हैलोजन ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो हाइड्रोजन हैज द कैपेसिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। तो मेंडलीव ने उसकी जो पोजीशन है हाइड्रोजन की, ही कुड नॉट डिसाइड वेयर टू कीप, तो उसकी पोजीशन फिक्स नहीं थी। एक्चुअली हाइड्रोजन की पोजीशन आज भी फिक्स नहीं है, इसलिए वो पीरियोडिक टेबल के ऊपर लिखा जाता है। तो दिस वाज फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड था कि जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए, मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनने के काफी बाद आइसोटोप्स डिस्कवर हुए थे, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि आइसोटोप्स के मास अलग अलग होते हैं। ओके, आइसोटोप्स अगर आपको नहीं पता है तो देखिए क्या होते हैं। सपोज मैंने लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 1, 1 एंड 1। आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। तो फर्स्ट हाइड्रोजन का मास 1, देन 2 एंड देन 3। एटॉमिक नंबर हम मेटल के बॉटम में लिखते हैं और एटॉमिक मास टॉप में। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास डिफरेंट है, दैट इज 1, 2 एंड 3। तो अगर इनके मास डिफरेंट है और मेंडलीव ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हाइड्रोजन आना चाहिए, देन सेकेंड हाइड्रोजन, देन थर्ड हाइड्रोजन, इनको अलग अलग स्पेस मिलना चाहिए। तो दिस गेव अ चैलेंज टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उन्होंने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास है तो आप हमें सेपरेट स्पेस दो, बट ही कुड नॉट, क्योंकि ये सारे एलिमेंट थे वो सेम थे, इनकी प्रॉपर्टी सेम थी, तो उन्होंने इनको सेम प्लेस पे रख दिया। तो आइसोटोप से एक चैलेंज था। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी वो थी कि जो एटॉमिक मास है वो प्रॉपर पैटर्न में इंक्रीज नहीं होते। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है जैसे 58.93 एंड देन 58.71, यहाँ इंक्रीज डेसिमल्स में है, लेकिन कुछ केस पे जैसे देखिए ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन का 3 इंक्रीमेंट है। तो मास जो इंक्रीज हो रहा है, देयर इज नो प्रॉपर और यू कैन से रेगुलर मैनर, कोई ऐसा रूल नहीं है। तो जो गैप थे दो एलिमेंट के बीच में, जो उन्होंने गैप छोड़ा था, उसमें कितने एलिमेंट डिस्कवर होंगे ये पता नहीं था। तो दिस वाज थर्ड लिमिटेशन। फोर्थ लिमिटेशन हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ लिया है कि हायर एटॉमिक मासेस, जैसे यहाँ पे कोबाल्ट को निकल के पहले रखा गया है। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में भी ड्रॉबैक निकले तो इसको एक कुछ और थिंक किया गया कि नहीं, देयर शुड बी सम इम्प्रूवमेंट, देयर आर स्कोप टू इम्प्रूव द थिंग्स, और उसके लिए आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट आते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया? इन 1930 हेनरी मोसले ने। उन्होंने क्या बोला कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है ना, वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती भाई साहब, ये डिपेंड करती है उसके एटॉमिक नंबर पे। तो उन्होंने जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोला, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर।
मेंडलीफ ने क्या बोला, सिर्फ ये एटॉमिक नंबर की जगह उन्होंने एटॉमिक मास बोला था, और हेनरी ने बोला कि वो एटॉमिक मास नहीं है, एटॉमिक नंबर है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिसको उन्होंने ग्रुप नाम दिया, और हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने बोला पीरियड है। मतलब ऐसे वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये कितने कॉलम्स हैं, 1 से लेके 18 तक, और हॉरिजॉन्टल रोज हैं जो 1 से लेके 7 तक है, 7 पीरियड्स हैं। नाउ हुआ क्या कि जब इन्होंने बोला कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की वो एटॉमिक मास का फंक्शन है, मेंडलीव के जो भी मेजर 3 लिमिटेशंस थे इस प्रॉपर्टी की वजह से सॉल्व हो गई, इस लॉ की वजह से। कैसे, हम एक एक ड्रॉबैक देखते हैं मेंडलीव का लिमिटेशंस, और उसका क्लैरिफिकेशन कैसे हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो पहला ड्रॉबैक था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, नो फिक्स प्लेस फॉर हाइड्रोजन। वैसे फिक्स तो आज भी नहीं है। उन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन को क्लासिफाई किया था। तो हेनरी ने क्या बोला कि इट इज एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो इसका हेनरी ने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 1 है इसलिए सबसे पहले आएगा। और दोनों की जैसी प्रॉपर्टी है, तो अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को टेबल से थोड़ा ऊपर अलग लिखा जाता है और बाकी की टेबल एक साथ ऐसे ज्वाइन है, दिस वे। दूसरी जो लिमिटेशंस थी मेंडलीव की वो थी प्रॉब्लम ऑफ आइसोटोप्स। प्रॉब्लम ऑफ आइसोटोप्स कैसे थी कि उन्होंने बोला भाई हाइड्रोजन 3 हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है, मास अलग है, तो इनको अलग स्पेस मिलना चाहिए। ये मेंडलीव का लिमिटेशन था। हेनरी ने बोला कि नहीं भाई, इनके एटॉमिक नंबर सेम हैं और हमें कैसे अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जब सेम है तो सबको चलो एक साथ रखो, करेक्ट। मेंडलीव के अकॉर्डिंग वो ड्रॉबैक था। कैसे, मास अलग, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग स्पेस मिलना चाहिए। मुस्ले ने बोला, हेनरी मुस्ले ने, नहीं भाई इनके एटॉमिक नंबर सेम है तो चलो एक साथ रखो, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर है। दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व, करेक्ट, ओके। थर्ड लिमिटेशन क्या थी कि हायर एटॉमिक मास को उन्होंने पहले रख दिया था, नो प्रॉब्लम। हमने बोला कि निकिल के पहले कोबाल्ट आ रहा है और निकिल का मास कम है, आने दीजिए। हमने क्या बोला, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर निकिल से कम है, इसलिए कोबाल्ट पहले आएगा, निकिल बाद में। हम मास नहीं देखेंगे, हम एटॉमिक नंबर देखेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, करेक्ट। नेक्स्ट जो चौथी प्रॉब्लम थी, चौथी प्रॉब्लम ये बोलती है कि दो अगर एटम दिए हैं, उनके मास सपोज 58.83 और 58.93 फॉर एग्जांपल, तो मुझे ये नहीं पता कि कितने न्यू एलिमेंट यहाँ पे अकोमोडेट होंगे। हेनरी ने उसको भी सॉल्व कर दिया। उन्होंने बोला भाई कि अगर एटॉमिक नंबर 27 है और फिर एटॉमिक नंबर 31 है, तो एटॉमिक नंबर होल नंबर होते हैं और 1 by 1 इंक्रीज होते हैं। तो 27 के बाद 28, 29 और 30, 3 नए एलिमेंट ढूंढे जाएंगे, क्योंकि 27 हमारे पास है, 31 हमारे पास है, मिसिंग इज दीज 3, तो ये 3 नए एंटर होंगे। क्लियर। तो मुस्ली के टेबल में मेंडलीव के जो ड्रॉबैक थे वो सारे करेक्ट हो गए, ठीक है। अब देखिए, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट की पोजीशन एक लॉजिक से रखी गई है। लॉजिक से कैसे, अगर वो बोलते हैं ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर से एक्चुअली आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आप ये बता सकते हैं। आउटर मोस्ट शेल में सपोज ग्रुप 1 है तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 है तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 13 है तो आउटर मोस्ट शेल, सॉरी ग्रुप 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, आई एम सॉरी, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 13 है तो आउटर मोस्ट शेल में 3, 14, 15, 16, 17, 18, तो आउटर मोस्ट शेल में रिस्पेक्टिवली 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे।
ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़े डिफरेंट होते हैं। वहाँ डी ऑर्बिटल आते हैं, इन सब के बारे में आप क्लास 11th में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम ग्रुप 1, 2, अगर ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट है, जैसे ग्रुप 1 का आप मान लीजिए लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो इन सबका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम ले लीजिए, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 19, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,8,8,1, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सेम वे अगर ग्रुप 2 का एलिमेंट है जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,2, देखिए आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 13 ग्रुप का एलिमेंट है तो फॉर श्योर उसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 3 होंगे। तो ये हो गया ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर हमें बताता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। नाउ कम टू द पीरियड नंबर। पीरियड नंबर बताता है कि उस एटम में इलेक्ट्रॉन मतलब एलिमेंट में टोटल कितनी शेल्स हैं। तो सपोज अगर वो पीरियड 3 का एलिमेंट है, पीरियड 3 का एलिमेंट जैसे कि आप ले लीजिए सोडियम, तो इसमें 3 शेल्स होंगी। जो पीरियड है वो बताता है नंबर ऑफ शेल्स, करेक्ट, और जो ग्रुप है वो बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, करेक्ट, ओके। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में कितने होंगे उसके लिए फॉर्मूला है 2n²। मतलब कि अगर थर्ड सेल है तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n की वैल्यू 3 रखिए, n इज द नंबर ऑफ शेल। तो अगर आप थर्ड सेल की बात कर रहे हैं तो 2 into 3 का स्क्वायर दैट इज 2 into 9 मतलब 18। 18 शेल में 18 नॉट 18 सेल, थर्ड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो 18 आएंगे। क्लियर, ओके। नाउ अगर थर्ड सेल ही आउटर मोस्ट शेल है तो आउटर मोस्ट शेल में कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैल्शियम लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 20, तो पहली शेल में 2, कैसे 2, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखिए क्योंकि फर्स्ट सेल है। तो फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 into 1 का स्क्वायर, देखिए 2n²। तो अगर n की वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट शेल रखते हैं तो 2 into 1 का स्क्वायर दैट इज 2, n equal to 2, सेकेंड शेल 2 into 2 का स्क्वायर दैट इज 2 into 4 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो सेकेंड शेल में आ गया 8। अब देखिए थर्ड शेल में हमने देखा 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कैल्शियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 20, जिसमें से फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8 आए, मतलब कितने होगा 10। तो थर्ड सेल में 18 होना चाहिए क्योंकि थर्ड सेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड सेल ही लास्ट सेल हो जाएगी और लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सेल में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर, आउटर शेल में कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे और कैल्शियम के टोटल जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो 2,8,8,2। क्लियर, इससे रिलेटेड चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 सपोज 8,3 है, करेक्ट। आप मुझे ये बताइए कि ये कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड का एलिमेंट है। आपके पास एक ऑप्शन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करो 10, 18 and 3, 21, करेक्ट, ऐसा ढूंढो, करेक्ट ना, ओके। और या फिर आप सीधे बता सकती हो कि ये कौन से ग्रुप का है। ग्रुप तो देखिए ग्रुप तो बताना यहाँ से डिफिकल्ट है क्योंकि ये 3 से लेके 12 तक के बीच में आता है, तो उनको जनरली हम नहीं बताते। यहाँ पे हम बात करते हैं कितनी शेल्स है, 1, 2, 3, 4, 4 शेल है, मतलब ये फॉर श्योर फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है ये। क्लियर, ओके। एक और क्वेश्चन दे देती हूँ,
जैसे फॉर एग्जांपल किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 7, तो अगर मैंने पूछा एक एलिमेंट है जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 7, तो ये किस ग्रुप का एलिमेंट है? आउटर शेल में 7 दिख रहा है, मतलब ग्रुप नंबर इज 17। कितनी शेल्स दिख रही हैं? ये फर्स्ट और ये 2 शेल्स है, मतलब पीरियड नंबर 2। क्लियर? एक और देख लेते हैं। सपोज 2,8,2 है, तो किस ग्रुप का आएगा? आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सेकेंड ग्रुप। कितनी शेल्स है टोटल? 1 2 3 शेल, मतलब पीरियड नंबर इज 3। क्लियर? एक मैं और आपको 2 क्वेश्चन दे देती हूँ, तो यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ। सपोज एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 7 है, एंड नेक्स्ट एलिमेंट है सपोज 2,8। ये 2 एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर आपको बताना है। क्लियर? यहां तक डन? ओके। नाउ सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स क्या हैं। हमने क्लासिफाई क्यों किया? क्योंकि देयर शुड बी सम पैटर्न, है ना? कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिसमें एक ग्रेडेशन होगा, या तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला है वैलेंसी। तो वैलेंसी होती क्या है? जनरली जो वैलेंसी है वो इस बात से पता चलता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ना? So the number of valence electron present in the outermost shell of its atom determine the valency. कैसे पता चलेगा? देखिए, ये outermost shell में अगर इलेक्ट्रॉन ये हैं तो उनकी वैलेंसी उसके नीचे लिखी हुई है। अगर outermost shell में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी +1, 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी +2, outermost shell में 3 इलेक्ट्रॉन है, +3। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो वैलेंसी होगी वो 4 होगी। प्लस मैंने इसलिए नहीं लिखा, प्लस वैलेंसी तब होती है जब एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और निगेटिव वैलेंसी तब होती है जब एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। सो जो 4 वैलेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, मतलब उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, इसलिए उसकी वैलेंसी हम न्यूट्रल 4 लिखते हैं। आउटर शेल में अगर 8 है तो ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ना डोनेट करेगा, और ना ही शेयर करेगा, इसलिए उसकी वैलेंसी 0। अब एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों करेगा या डोनेट करेगा ही क्यों? तो द थिंग इज कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो एटम की एनर्जी लीस्ट हो जाती है, मतलब वो स्टेबल हो जाता है। तो सभी को स्टेबिलिटी चाहिए, है ना? लाइफ में सभी को सेट होना है, जॉब मिल गई, लाइफ एकदम सेट, करेक्ट? सभी को स्टेबिलिटी चाहिए। तो सेम वे एटम को एक स्टेबिलिटी चाहिए होता है। अब आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन लेना है। सपोज आउटर मोस्ट शेल में 5 है, करने कितने हैं? 8, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 5 + 3 8 हो जाएगा। जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, इसलिए ओवरऑल वो एटम निगेटिव बन जाता है, एंड द वैलेंसी इज माइनस। क्लियर? डन? ओके। अब वैलेंसी का असर लेफ्ट टू राइट कैसे फर्क पड़ता है वो देख लेते हैं। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो देखिए वैलेंसी क्या हो रही है? प्लस इंक्रीज हुई, फिर प्लस से माइनस हुई, और फिर माइनस डिक्रीज हुई, लास्ट में 0। करेक्ट? तो लेफ्ट टू राइट जो वैलेंसी होती है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मूव होती है। और टॉप टू बॉटम क्या होता है? टॉप टू बॉटम मतलब इनर ग्रुप। तो देखिए इनर ग्रुप हमने पढ़ा था कि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होते हैं, है ना? जैसे अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो ग्रुप 1 का है। अगर ग्रुप 2 का एलिमेंट है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट में, तो उन सबकी वैलेंसी कितनी होगी? +2। मतलब टॉप टू बॉटम अगर आप जाते हो तो वैलेंसी चेंज नहीं होती, इट इज कांस्टेंट। ठीक है? तो इससे रिलेटेड हम कुछ सम्स कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक एटम है, कोई भी, मतलब मैं सपोज चलो नाम ही देती हूँ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7।
कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा इसका 2,5। करेक्ट। फिलिंग कैसे होती है 2n², n इज नंबर ऑफ शेल। तो अगर फर्स्ट सेल है तो 2 × 1² मतलब 2, तो 2 पहले में आ गया और सेकेंड में 5, क्योंकि उसमें 8 तक एकोमोडेट हो सकते हैं। आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड शेल है इसलिए n की वैल्यू 2 रखा, 8, तो यहाँ 5 ही है। करेक्ट। तो अगर नाइट्रोजन है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? आप क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन बनाया, आउटर मोस्ट शेल में 5 है, आउटर शेल में अगर 5 है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? यू कैन सी फ्रॉम हियर -3, मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। करेक्ट। ओके। देन सपोज मैंने बोला कि एक एलिमेंट है X जो मैग्नीशियम वाले ग्रुप को बिलोंग करता है। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर इज वन एलिमेंट X जो मैग्नीशियम के ग्रुप को बिलोंग करता है, तो X की वैलेंसी कितनी है? तो मैंने क्या बोला कि जो एलिमेंट X है वो सेम ग्रुप का है एज मैग्नीशियम। क्योंकि ग्रुप सेम है तो ग्रुप की वैलेंसी चेंज नहीं होती है ना, टॉप टू बॉटम वैलेंसी इज कांस्टेंट, सेम टू सेम। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 282, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी इज +2। अगर वैलेंसी +2 है तो उसी ग्रुप के सारे एलिमेंट की वैलेंसी +2 है, तो इसका मतलब X की भी वैलेंसी कितनी होगी? +2। ये क्लियर? ओके। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ। सपोज एक एलिमेंट है Z जो कि ग्रुप 17 को बिलोंग करता है, तो इसकी आपको वैलेंसी ढूंढनी है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, सपोज एक एलिमेंट है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है, इसकी वैलेंसी आपको बताना है। करेक्ट। एल्यूमिनियम की आपको वैलेंसी बताना है। एंड सपोज एक एलिमेंट है Y जो एल्यूमिनियम के ग्रुप को बिलोंग करता है, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? ये क्लियर? ओके, तो ये 2 क्वेश्चन आप कर दीजिए। नेक्स्ट जो हम ट्रेंड देखेंगे, अभी हमने वैलेंसी का देखा, अभी हम देखते हैं एटॉमिक साइज का ट्रेंड कैसा होता है। अब एटॉमिक साइज होता क्या है, यहाँ लिखा है एटॉमिक साइज रिफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। ओके, सपोज ये आपका एटम है और ये न्यूक्लियस है, इसमें बहुत सारी शेल्स होती हैं, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल एसेट्रा। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ये कुछ तो 10⁻⁻15 मीटर साइज की होती है, मतलब पिकोमीटर बोल सकते हैं। तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो होता क्या है, देखिए एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट मूव होने पे डिक्रीज होती है। जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। कैसे डिक्रीज होगी, देखिए सपोज कोई भी एक पीरियड पकड़ लीजिए, लेफ्ट टू राइट मतलब इन अ पीरियड। तो सपोज मैंने पकड़ा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, है ना, कार्बन एसेट्रा, ये ग्रुप एक पीरियड, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,1, बेरिलियम में 4, बोरॉन में 5, कार्बन में 6, तो 2,2, 2,3 एंड 2,4। सेम ही शेल है, मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन सेकेंड शेल, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल एसेट्रा, सारे एलिमेंट का। तो सपोज ये लिथियम है, ये बोरॉन, सॉरी बेरिलियम, ये बोरॉन, ये कार्बन। इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर में 1, इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर में 2। बेरिलियम के लिए देखिए आउटर में 2 है, बोरॉन के लिए आउटर शेल में 3 है, इनर में 2, कार्बन के लिए इनर में 2 है और आउटर में 4। हुआ क्या, सेम सेल में, मतलब इसकी एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट होनी चाहिए क्योंकि सेकेंड शेल है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ गया। कैसे बढ़ गया न्यूक्लियर चार्ज? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं और यूं कहिए कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं।
प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो सेम शेल को मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन उसको खींच रहे हैं। न्यूक्लियस में यहाँ 3 प्रोटॉन है, यहाँ 4, यहाँ 5 एंड हियर 6 प्रोटॉन आउटर मोस्ट शेल को खींच रहे हैं। सो एज देयर इज मोर चार्ज, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इसलिए साइज श्रिंक हो जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है या एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। इसका मतलब सेकेंड पीरियड में लिथियम की साइज सबसे बड़ी, देन बेरिलियम की, देन बोरॉन की, और कार्बन सबसे छोटा। ये क्लियर? ओके। जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं इन अ ग्रुप, ग्रुप मतलब कॉलम, तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होती है, एक नई शेल बनती है। जैसे अगर वो फर्स्ट पीरियड का है तो 1 शेल, सेकेंड पीरियड का है तो 2 शेल, थर्ड पीरियड का है तो 3 शेल। As there is a new formation of a new cell बनने की वजह से डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक साइज है वो क्या होती है, इंक्रीज। करेक्ट? चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरे पास ग्रुप, ओके, सपोज मेरे पास है एल्यूमिनियम, मेरे पास है सोडियम, मेरे पास है मैग्नीशियम। तो इसमें सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? तो पहले ये सेम पीरियड के एलिमेंट हैं। ओके, पहले मेरा क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम, सोडियम और मैग्नीशियम में सबसे बिग साइज किसकी है? बिग साइज, द बिगर एलिमेंट। तो क्या करना पड़ेगा, इन ये सेम पीरियड, कौन से पीरियड के एलिमेंट है ये? थर्ड पीरियड के। तो इनको लेफ्ट टू राइट अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले पीरियड में आता है सोडियम, फिर मैग्नीशियम एंड देन एल्यूमिनियम। हमने क्या पढ़ा, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है मतलब सबसे छोटा एल्यूमिनियम, फिर सोडियम, तो बिगर एलिमेंट इज सोडियम। क्लियर? अब टॉप टू बॉटम देखिए। टॉप टू बॉटम का एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? हमने पढ़ा था कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होती, मतलब कैल्शियम की साइज सबसे बड़ी होगी। ये क्लियर? तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ। सपोज कैल्शियम है, मैग्नीशियम है एंड लिथियम है, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? देन सेकेंड क्वेश्चन कि एक एलिमेंट है जो सेकेंड ग्रुप और थर्ड पीरियड का है, करेक्ट? एंड दूसरा एलिमेंट जो बी है, सपोज वो थर्ड ग्रुप और थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। विच वन इज बिगर? विच वन इज बिगर इन साइज? ये आपको बताना है। क्लियर? ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। हम एटॉमिक साइज में कैटायन और एनायन की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन अ ग्रुप, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। करेक्ट? लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम साइज जो होती है वो इंक्रीज होती है। क्लियर? ओके। अब सपोज लेफ्ट और यहाँ सपोज राइट, लेफ्ट में मैंने सोडियम लिया, सोडियम के ग्रुप में ही एल्यूमिनियम आता है, और इसके और आगे जाएंगे तो उसी ग्रुप में सपोज क्लोरीन आता है। तो हमने देखा कि अगर ये एलिमेंट हैं, दे आर नॉट आयंस, तो सोडियम की साइज सबसे बड़ी है, क्लोरीन देन एल्यूमिनियम की, देन क्लोरीन की। तो कैटायन क्या होते हैं? अगर किसी एलिमेंट से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। अगर इसको आप इलेक्ट्रोलाइट में डालते हो तो ये कैथोड की तरफ जाएगा। क्योंकि ये कैथोड की तरफ जाएगा तो इसलिए इसको कैटायन बोलते हैं। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ये निगेटिव हो गया, और अगर इसको इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड के साथ डालेंगे तो एनोड की तरफ मूव करेगा, इसलिए इसको हम एनायन बोलते हैं।
तो मुझे पता है कि सोडियम इज ग्रेटर देन क्लोरीन। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सोडियम बड़ा होगा या सोडियम का आयन बड़ा होगा? क्लोरीन बड़ा होगा या क्लोरीन का आयन बड़ा होगा? करेक्ट। तो ये है आपका कैटायन, ये है आपका एनायन। इतना क्लियर? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? ओके, तो देखिए इसको करेंगे कैसे। इसको करने के लिए लेट मी क्लियर दिस स्पेस। ओके, सो देखिए सोडियम में 3 सेल थी, 2 कॉमा, है ना। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2, 8, 1। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। कितनी शेल्स बची? ओनली 2। तो 2 शेल्स है तो ऑलरेडी साइज रिड्यूस हो गया। क्यों? क्योंकि एक शेल गायब हो गई, इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो अब शेल क्या करेगी? एंड प्रोटॉन अभी भी 11 है, तो ये 11 प्रोटॉन इन 8 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। मतलब आयन बनने के बाद ये 11 प्रोटॉन 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, उसको और श्रिंक कर देगा। मतलब सोडियम का जो आयन है, कैटायन, उसकी साइज सोडियम से छोटी होगी। करेक्ट, श्रिंक हो गया। अब क्लोरीन में देखिए, क्लोरीन में क्या हुआ? क्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो प्रोटॉन अभी 17 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। करेक्ट। तो ये 17 प्रोटॉन 18 प्रोटॉन में को लिटिल लेस फोर्स से खींचेंगे। क्यों? क्योंकि पहले 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन थे, तो सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, प्रोटॉन सेम टू सेम है, तो अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब जब अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो जैसे देखिए ये था, अट्रैक्शन फोर्स रिड्यूस हो गया, ये थोड़ा एक्सपांड हो जाएगा। मतलब क्लोरीन आयन की साइज इंक्रीज हो जाएगी कंपेयर टू क्लोरीन। एनायन की साइज बढ़ जाती है, कैटायन की साइज रिड्यूस हो जाती है। इतना क्लियर? ओके, तो हमारा क्वेश्चन अभी एग्जिस्ट करता है कि सोडियम आयन बड़ा होगा कि क्लोरीन आयन बड़ा होगा। करेक्ट? या इन चारों में सबसे बड़ा कौन होगा? तो हमने देखा कि सोडियम की साइज सबसे बड़ी थी, सोडियम की जो साइज थी वो क्लोरीन से बड़ी थी। तो अगर सोडियम का आयन सोडियम से छोटा है, मतलब अभी भी सोडियम सबसे बड़ा है, और क्लोरीन की साइज इंक्रीज, क्लोरीन आयन की साइज इंक्रीज हुई लेकिन उतनी नहीं कि वो सोडियम से बड़ा हो जाए। करेक्ट? तो द बिगेस्ट वन इज सोडियम। और अगर समरी देखें तो कैटायन की साइज जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, वाइल एनायन की साइज इंक्रीज हो जाती है कंपेयर टू देयर रिस्पेक्टिव न्यूट्रल एलिमेंट। ये क्लियर? ओके, तो अभी हम नेक्स्ट हम देखेंगे मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक या फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दोनों पढ़ लेंगे साथ में। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें, ग्रुप 1, ग्रुप 2, देन 13, 14, ऐसे आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखिए, तो लेफ्ट में जो होते हैं दे आर मेटल, ठीक है, और राइट में नॉन मेटल। मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है, मेटेलिक कैरेक्टर मेटल से नॉन मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है ना। और अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो लेफ्ट टू राइट में मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज। और टॉप टू बॉटम में क्या होगा? ओके, तो इसको समझने के लिए पहले ये देखिए कि मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है। मेटेलिक कैरेक्टर इज कि हाउ इजली द एटम इज एबल टू डोनेट द आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। अगर वो इजली डोनेट करता है तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, और अगर इजली एक्सेप्ट करता है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है? तो अगर एक मेटल है वो इजली इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब उसका मेटेलिक कैरेक्टर हाई है। तो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटम की साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। साइज इंक्रीज मतलब न्यूक्लियस से वो दूर जाता है। करेक्ट? और न्यूक्लियस से अगर वो दूर होगा, कौन दूर होगा? इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगा तो वो इजिली वहां से निकल जाएगा। मतलब एटम विल बी एबल टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन इजिली। करेक्ट?
तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट हो रहे हैं। अगर इजिली डोनेट हो रहे हैं इसका मतलब क्या है कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज। और अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पूछे तो उल्टा, मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज। क्लियर? ओके, तो इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन करवा देती हूँ। सपोज मैंने बोला कैल्शियम एंड मैग्नीशियम which has more non-metallic character. Question is which is more non-metallic character. तो पहले इसको टॉप टू बॉटम में अरेंज कीजिए, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, करेक्ट, मतलब नॉन मेटेलिक डिक्रीज होगा। मतलब मैंने पूछा विच इज मोर नॉन मेटेलिक, सो इट इज मैग्नीशियम। इफ यू डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो नॉन मेटेलिक कौन सा होगा, मैग्नीशियम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैंने बोला कि एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम प्लस, इसमें मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, करेक्ट। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब हाउ इजली एन एटम कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये एल्यूमिनियम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। ये एल्यूमिनियम प्लस है, मतलब इसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक डोनेट कर दिया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। प्लस क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर कैटायन है तो उसकी साइज एलिमेंट से रिड्यूस हो जाती है, करेक्ट। मतलब एल्यूमिनियम हैज बिगर साइज देन एल्यूमिनियम प्लस। इसका मतलब इसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, साइज बिगर, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है मतलब इजिली डोनेट करेगा। तो एल्यूमिनियम इजिली डोनेट करेगा कंपेयर टू एल्यूमिनियम प्लस। मतलब यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, एल्यूमिनियम इज मोर मेटेलिक देन एल्यूमिनियम प्लस, करेक्ट। नेक्स्ट, क्लोरीन और क्लोरीन माइनस में विच हैज मोर मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, करेक्ट। तो क्लोरीन हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। अब साइज इसमें से किसका बिगर होगा, तो एनायन में, अगर आप एनायन की बात करो तो कंपेयर टू न्यूट्रल एलिमेंट एनायन इज बिगर मतलब इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन इजिली। वैसे तो ये डोनेट नहीं करेगा बट इजिली। सो क्लोरीन इज मोर मेटेलिक देन क्लोरीन आयन इज मोर मेटेलिक देन क्लोरीन। ये क्लियर? ओके, तो चलिए नेक्स्ट और कुछ कर लेते हैं। मैं इसके पहले आपको कुछ क्वेश्चन दे दूं। क्वेश्चन 1, suppose I have aluminium and magnesium, aluminium plus magnesium plus, which is more metallic character, more, more metallic character. Question 2, magnesium and calcium, which has more metallic character. Next question, chlorine and bromine, which has more metallic character. ठीक है, so this you can do. Okay, तो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती क्या है, कोई भी एटम कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर बेटर तरीके से समझिए कि अगर 2 एटम हैं ए एंड बी, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। सपोज अगर बी खींच रहा है तो बी इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, है ना। शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को जो एटम अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा विथ मोर फोर्स, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, जो नॉन मेटल होगा। तो अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज्यादा होगी, करेक्ट। तो लेफ्ट टू राइट हमने देखा कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं,
या उल्टा बोलें तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। तो लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टॉप टू बॉटम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी डिक्रीज होगी। तो अगर मैं बोलूं कि एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन का, क्योंकि ये नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा। मैंने बोला एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम प्लस में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो साइज एल्यूमिनियम का बड़ा, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है। मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है और एल्यूमिनियम प्लस का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्लियर? तो ये हो गया लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम देख लीजिए, ब्रोमीन एंड क्लोरीन, क्लोरीन टॉप में आता है, ब्रोमीन बॉटम में। बॉटम में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी डिक्रीज होगी, मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा होती है। ये क्लियर? तो चलिए इससे भी रिलेटेड मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दे देती हूँ। आपको बताना है कि ब्रोमीन माइनस एंड आयोडीन माइनस में विच इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्वेश्चन 2, सोडियम एंड सोडियम प्लस में लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्वेश्चन 3, सोडियम एंड मैग्नीशियम में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। करेक्ट? तो ये आपका होमवर्क है, प्रैक्टिस कर लीजिए। आई थिंक दिस इज आवर लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड में से। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन मोर डिटेल। अगर आपको मोर क्वेश्चंस चाहिए तो यू कैन आइदर सर्च इन गूगल और मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, तो मैं डेफिनेटली मोर क्वेश्चंस इस पे और दे दूंगी। ठीक है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ना लाया हो तो बिंदास डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट में लिखिए कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आया, ताकि मैं उस वीडियो को और इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है? थैंक यू।